جات دوست کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں لوگ اپنی پرانی روایات اور کھیتی باڑی کی زندگی کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ اس گاؤں میں رہنے والے لوگ اپنی محنت کی کمائی پر خوش تھے اور کسی بھی بڑی تبدیلی سے دور تھے۔ لیکن ایک دن گاؤں میں کچھ غیر معمولی لوگ آتے ہیں جو اپنی جدید سوچ کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک تھا ریگیوشن سنی دیول، جو شہر کا رہائشی اور ایک کامیاب تاجر تھا۔ ریگیوش نے گاؤں کے لوگوں کو جدید دنیا کے فوائد دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش گاؤں والوں کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں اور نوجوانوں کے درمیان اس تبدیلی کو لے کر اختلافات پیدا ہو گئے۔ ریگیوش سنگھ کا ماضی کافی پیچیدہ تھا۔ اس نے اپنے والدین کے ساتھ کئی سال گزرے جو گاؤں کی زمینوں اور کھیتوں میں محنت کرتے ہوئے گزار چکے تھے۔ ریگیوش کا دل ہمیشہ اپنے گاؤں کی زمین سے جڑا رہا تھا، لیکن شہر کی دنیا نے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ وہ شہر کی تیز رفتار زندگی، ترقی اور کاروبار کے دھارے میں بہتا چلا گیا تھا۔ مگر جب اس کا دل واپس گاؤں کی جانب مائل ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ دونوں دنیوں میں پھنس چکا ہے۔ ایک طرف شہر کی چمک دمک تھی، جبکہ دوسری طرف گاؤں کی سادگی اور امن تھا۔ ریگیوش کے دل میں ایک خوف تھا کہ اگر وہ گاؤں کی روایات کو چھوڑ کر شہر کی ترقی کے راستے پر چلے گا تو اس کی پرانی زندگی کو نقصان پہنچے گا۔ گاؤں کے لوگ اس تبدیلی سے خوش نہیں تھے اور ان کا خیال تھا کہ اگر یہ تبدیلی آئی تو ان کی روایات اور ثقافت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گاؤں کے بزرگ جنہوں نے زندگی بھر زمینوں پر محنت کی تھی، وہ ریگیوش کے نئے خیالات کو ناپسند کرتے تھے۔ ان کے نزدیک زمین سے جڑ کر رہنا اور کھیتی باڑی کرنا ہی اصل حقیقت تھی۔ ان بزرگوں میں سب سے زیادہ اثر اور رسوخ رکھنے والا شخصیت تھا بابا سروپ سنگھ، جو ہمیشہ اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ اس نے ریگیوش سے کہا، بیٹا، تمہاری کامیابی کی قیمت ہم نہیں چکا سکتے کیونکہ ہم نے اپنی سادگی میں ہی سکون پایا ہے۔ ریگیوش کے اندر ایک اندرونی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کا دل گاؤں کی روایات کے ساتھ تھا اور دوسری طرف وہ شہر کی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے گاؤں والوں کی باتوں کو نظر انداز کیا تو وہ ان کے دلوں میں خفگی پیدا کرے گا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ گاؤں والوں کو جدید دور کے فوائد سمجھانا ضروری ہے تاکہ وہ بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکیں۔ ریگیوش نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں والوں کو شہر کی زندگی کے بارے میں آگاہ کرے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کی روایات کو بھی محفوظ رکھے گا۔ ریگیوش نے گاؤں میں ایک میٹنگ رکھی جہاں اس نے گاؤں والوں کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا، ہم سب کو ترقی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی زمینوں کو بہتر طریقے سے استعمال کریں، نئے زرعی طریقے اپنائیں اور کاروبار کے نئے مواقع تلاش کریں تو ہم اپنی روایات کے ساتھ ساتھ ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ گاؤں والوں کا رد عمل مکس تھا۔ کچھ لوگ اس کے خیالات سے متفق ہوئے جبکہ کچھ نے اسے بے وقوفی سمجھا، لیکن ریگیوش نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس تبدیلی کو لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس کے بعد ریگیوش نے شہر سے کچھ ماہرین کو گاؤں میں بلایا جو جدید زرعی طریقے اور کاروبار کے مواقع کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر سکتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ابتدائی طور پر ہچکچاتے رہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان نئے طریقوں کو آزمانا شروع کیا۔ ریگیوش کا خواب تھا کہ گاؤں میں اتنی ترقی ہو کہ وہاں کے لوگ شہر کے لوگوں کی طرح خوشحال ہوں۔ اس کی جدوجہد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکے۔ مگر ایک دن گاؤں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ریگیوش کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے ان نئے طریقوں کے خلاف بغاوت کی اور کہا کہ یہ شہر کی طرح زندگی گزارنا ہماری ثقافت کو ختم کر دے گا۔ ان نوجوانوں کی قیادت کرتا تھا سونو، جو ریگیوش کا بچپن کا دوست تھا۔ سونو کا خیال تھا کہ شہر کی زندگی صرف دکھاوے اور فریب پر مبنی ہے۔ اس نے ریگیوش سے کہا، تم اپنے گاؤں کو تباہ کر رہے ہو، ہمارے لیے زمین، کھیت اور ہماری روایات ہی سب کچھ ہیں۔ ریگیوش کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سونو جیسے دوست کا اعتراض اس کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ اس نے سونو سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن سونو کا موقف سخت تھا۔ دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں کے لوگ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف وہ تھے جو ریگیوش کے خیالات سے متفق تھے اور دوسری طرف وہ جو اپنے پرانے طریقوں کو اپنانا چاہتے تھے۔ یہ لڑائی اب صرف خیالات کی نہیں بلکہ گاؤں کی تقدیر کی جنگ بن چکی تھی۔
गांव में इस कश्मकश के दौरान रिगेविश को ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर का हिस्सा है। इसने फैसला किया कि वो इस जंग को खत्म करने के लिए कुछ बड़ा करेगा। इसने गांव के बुजुर्गों और नौजवानों को एक साथ बिठाया और एक ऐसी मजलिस रखी जिसमें दोनों तरफ के ख्यालात सुने जाएं। इस मीटिंग में रिगेविश ने सबको बताया कि तब्दीली एक कुदरती अमल है और अगर हम दोनों दनियों को यकजा करें तो हम एक नई ताकतवर कौम बना सकते हैं। इसने कहा, हमें ना तो अपनी रवायत को छोड़ना चाहिए और ना ही तरक्की के फवाइद को। हमें दोनों का इम्तिजाज करना होगा ताकि हम हर मैदान में कामयाब हो सकें। इस मजलिस में रिगेविश की बातों ने गांव के लोगों को एक नया जज्बा दिया। सोनू और दूसरे नौजवानों ने रिगेविश के ख्यालात पर गौर करना शुरू किया। उन्होंने समझा कि तरक्की सिर्फ गुर्बत और जाहिलियत से निजात का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी शनाख्त और रवायात के साथ जड़कर जिंदगी गुजारने का एक नया तरीका फराहम करती है। कुछ वक्त बाद गांव के लोग रिगेविश के साथ मिलकर एक नया आगाज करने के लिए तैयार हो गए। गांव के लोग जब रिगेविश के साथ मिलकर नया रास्ता इख्तियार करने पर राजी हो गए तो उन्होंने अपने खेतों में जदीद ज़री तरीक़े अपनाना शुरू कर दिए। ये नए तरीक़े उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग थे क्योंकि ये कुछ नया था, लेकिन रिगेविश ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और हर कदम पर उनकी रहनुमाई की। गांव के बुजुर्गों को इस तब्दीली में थोड़ी हिचकिचाहट थी, मगर रिगेविश ने उन्हें यह समझाया कि हम अपनी रवायत और जदीद तरीक़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद गांव में एक नई तब्दीली का आगाज हुआ। किसानों ने जदीद आलात का इस्तेमाल शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी फसलों की पैदावार में भी इजाफा हुआ। गांव के लोग पहले की निस्बत ज्यादा खुशहाल होने लगे। इस तब्दीली के बाद रिगेविश ने अपने दोस्त सोनू से बात की कि अब गांव में एक नया बाब खिल चुका है और अब हमें अपनी तारीख के साथ साथ इस नई दुनिया को भी अपनाना होगा। सोनू, जो पहले रिगेविश के ख्यालात के मुखालिफ था, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ख्यालात से मुत्तफिक होने लगा। सोनू ने कहा, मैंने अपनी आंखों से तब्दीली देखी है और अब मुझे समझ आया कि हम अपनी रवायात को ना छोड़कर भी तरक्की कर सकते हैं। रिगेविश और सोनू ने मिलकर गांव में एक तालीमी मंसूबा शुरू किया जिसमें नौजवानों को जदीद तालीम देने की कोशिश की गई। इसका मकसद ये था कि गांव के नौजवान दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलें। जब गांव में ये तब्दीलियां आना शुरू हुईं तो गांव के बाहर से भी लोग यहां आकर देखने लगे कि ये किस तरह का इनकलाबी गांव बन चुका है। रिगेविश का ख्वाब था कि वो गांव को एक मॉडल बना दे जिसे दूसरे गांव भी फॉलो करें। इसके ख्यालात और उसकी कोशिशों ने गांव को एक नई समत दे दी थी। इस दौरान रिगेविश का दिल खुश था कि इसकी जिदोजहद रंग ला रही थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो तब्दीली को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं कर पाए थे। इनमें से एक शख्सियत थी गांव का मकामी सियासतदान कर्नल वीर सिंह, जो रिगेविश की कोशिशों को नाकाम करने के दर पे था। कर्नल वीर सिंह एक ताकतवर और बाअसर शख्स था जिसका गांव की सियासत पर काफी असर और रसूख था। इसने कभी भी गांव की तरक्की को सच में नहीं चाहा था, क्योंकि इसके नजदीक ताकत और पैसा सिर्फ पुरानी रवायात और सियासत से हासिल होता था। वो रिगेविश के तरीकों को अपने मुफादात के खिलाफ समझता था। कर्नल ने गांव में प्रापेगेंडा शुरू कर दिया कि रिगेविश ने गांव की रवायात को खतरे में डाल दिया है और उसकी तरक्की के नाम पर वो सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात हासिल कर रहा है। इसके जरिए कर्नल ने लोगों को रिगेविश के खिलाफ उभारना शुरू कर दिया। रिगेविश के लिए ये एक नया चैलेंज था। वो जानता था कि अगर कर्नल की बातों का असर गांव के लोगों पर पड़ा तो इसका सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। रिगेविश ने कर्नल के खिलाफ एक हिकमत अमली तैयार की। इसने फैसला किया कि वो खुद कर्नल से बात करेगा और इसे ये समझाएगा कि अगर गांव में तब्दीली आएगी तो सबको फायदा होगा, ना कि सिर्फ चंद लोगों को। इस मकसद के लिए रिगेविश ने कर्नल को गांव के एक अहम इज्तिमा में मदऊ किया, जहां दोनों की बातचीत का आगाज हुआ। रिगेविश ने कर्नल से कहा, हमें सबको एक साथ लेकर चलना होगा। अब भी हमारे साथ आएं और हम मिलकर इस गांव को एक नई मंजिल पर ले जाएंगे। कर्नल वीर सिंह ने रिगेविश की बातों पर गौर किया और कहा, तुम्हारी बात में वजन है, मगर तुम ये नहीं जानते कि मैंने यहाँ बहुत साल गुजारे हैं और गांव के लोगों के दिलों में मेरी एक जगह है। अगर तुमने किसी भी तरीके से हमारे निज़ाम को चैलेंज किया तो तुम्हें सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। रिगेविश ने कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कर्नल कि यह तब्दीली गांव के लिए है और ये आपकी ताकत को कम नहीं करेगी बल्कि बढ़ा देगी। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है और अगर हम ये नहीं करते तो हम सब का नुकसान होगा।
इस बातचीत ने कर्नल को वक्ती तौर पर खामोश कर दिया, लेकिन इसका अंदरूनी रद्द अमल इससे भी ज्यादा पेचीदा था। इसके बाद कर्नल वीर सिंह ने अपनी टीम को रिगेविश के खिलाफ साजिश करने के लिए उकसाया और गांव में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि रिगेविश ने गांव के लोगों को झूठा दुखाकर उनके पैसे और वसाइल चुरा लिए हैं। ये साजिश गांव के लोगों को मजीद तकसीम करने की कोशिश थी, लेकिन रिगेविश ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी हिकमत अमली को तब्दील करते हुए गांव के लोगों के सामने हकीकत रखी। इसने बताया कि ये तब्दीली सिर्फ गांव के फायदे के लिए है और इसमें किसी किस्म का जाती मुफाद शामिल नहीं। इसने अपने काम के शवाहिद लोगों को दिखाए, जैसे जदीद खेतों की पैदावार, तालीम के नए मौके और गांव की मईशत में आने वाली बेहतरी। रिगेविश की ईमानदारी और उसकी मेहनत ने आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोगों का एतमाद जीत लिया। इसके काम की हकीकत लोगों के सामने आई और कर्नल वीर सिंह की साजिशों का असर कम हो गया। गांव के लोग अब रिगेविश के साथ खड़े थे और उन्होंने इसकी हिमायत की। कर्नल वीर सिंह का असर और रसूख टूटने लगा और उसकी सियासत में भी तेजी से कमी आती गई। इस दौरान रिगेविश ने गांव में एक नया तरक्याती मंसूबा शुरू किया, जिसमें मजीद तालीमी इदारे, सेहत के मराकज़ और जदीद कारोबारी मौके फराहम किए गए। गांव के लोग अब एक नई उम्मीद के साथ जीने लगे थे। रिगेविश ने एक दिन गांव के तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, यह हमारा गांव है और हमने मिलकर इसे तरक्की की राह पर गामजन किया है। यह हमारी मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। अब हमें अपने आप पर फख्र होना चाहिए। हमने दिखा दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। गांव के लोग इस पर खुश हो गए और सब ने एक आवाज में कहा, हम सब एक हैं और हम सब ने एक नई समत में कदम बढ़ाया है। इसके बाद रिगेविश ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक नई दुनिया का आगाज किया। इसकी मेहनत और कुर्बानियों ने गांव को एक नई जिंदगी दी। इसके विजन और ईमान ने गांव को तरक्की की राह पर डाल दिया। अब गांव के लोग न सिर्फ अपनी रवायत से जुड़े हुए थे, बल्कि वो जदीद दुनिया के साथ भी चल रहे थे। रिगेविश ने यह साबित कर दिया कि तब्दीली के साथ रवायत को बचाकर भी तरक्की की जा सकती है। जात दोस्त की कहानी एक ऐसा पैगाम देती है कि अगर दिलों में ईमानदारी हो तो कोई भी चैलेंज नाकाबिल हल नहीं होता। रिगेविश की कामयाबी और गांव की जमीनों की हिफाजत के बाद पूरे इलाके में इसकी शोहरत में मजीद इजाफा हुआ। लोग जानते थे कि रिगेविश न सिर्फ एक अच्छा रहनुमा है, बल्कि वो अपनी कम्युनिटी की तरक्की और खुशहाली के लिए हर हद तक जा सकता है। इसकी ईमानदारी और अज़्म ने इसे एक मिसाल बना दिया था। गांव के लोग अब उसकी क़यादत में एक नई जिंदगी गुजारने लगे थे। गांव के नौजवानों ने अपने कारोबारी मंसूबे शुरू कर दिए थे, किसानों ने नई तकनीकों के जरिए अपनी पैदावार को बेहतर बनाया था और ख्वातीन ने घरेलू सनतों में काम करके अपनी खुद मुख्तारी हासिल की थी। गांव का चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था और उसकी तरक्की का सफर जारी था। लेकिन रिगेविश के दिल में हमेशा एक खौफ छुपा रहता था। वो जानता था कि कामयाब होने के बाद दुश्मन भी सामने आ सकते हैं। इसका खौफ ये था कि कहीं कोई और ताकत इसके रास्ते में रुकावट ना डाल दे। इस खौफ के बावजूद रिगेविश ने अपने आप को मजबूत रखा और अपनी तमाम तर तवानाइयां गांव की तरक्की के लिए सिर्फ कर दी। एक दिन गांव में एक बड़ी सियासी शख्सियत आई, जिसका मकसद था कि वो रिगेविश को अपने साथ मिलाकर गांव के वसाइल को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करे। ये शख्सियत एक बड़ी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखती थी और रिगेविश को इसके साथ मिलने की पेशकश की। रिगेविश ने इस सियासी शख्सियत की पेशकश को न सिर्फ रद्द किया, बल्कि इससे कहा, हमने अपने गांव की जमीनों और वसाइल की हिफाजत की है और हम उन्हें किसी सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमारी कामयाबी सिर्फ हमारी मेहनत और ईमानदारी पर मबनी है और हम किसी भी बैरूनी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। इस जवाब ने इस सियासी शख्सियत को सख्ती से मायूस किया, लेकिन इसने रिगेविश को खबरदार किया कि इसके इनकार का नतीजा बहुत संगीन हो सकता है। रिगेविश ने इसकी धमकियों को नजरअंदाज किया और अपने फैसले पर कायम रहा। इसके बाद इस सियासी शख्सियत ने गांव में एक और हरबा इस्तेमाल किया। इसने गांव के कुछ लोगों को रिश्वत देकर उनके दिल में शक डालने की कोशिश की कि रिगेविश उनके हुकूक के साथ खेल रहा है। ये अफवाहें गांव में तेजी से फैल गईं और लोगों में इज़्तिराब पैदा हो गया। रिगेविश ने फौरन इस सूरत हाल का नोटिस लिया और गांव के लोगों के सामने आकर कहा, हम सब ने मिलकर अपने गांव की जमीनों की हिफाजत की है और कोई भी झूठी अफवाह हमें इस रास्ते से नहीं हटा सकती। मेरी जिंदगी गांव की खिदमत में है और हम सब का एक ही मकसद है
ترقی اور خوشحالی، اس کی ایمانداری اور بہادری نے گاؤں کے لوگوں کا دل جیت لیا اور افواہیں ختم ہو گئیں۔ ریگیوش کی قیادت میں گاؤں کا سفر ایک نیا رخ اختیار کر چکا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی کمیونٹی کی ترقی میں مدد کی تھی بلکہ پورے علاقے میں ایک نیا رجحان قائم کیا تھا۔ اب گاؤں کے لوگ خود کفیل ہو چکے تھے اور ان کی زندگیوں میں خوشحالی آ چکی تھی۔ ریگیوش نے گاؤں میں ایک نیا تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا تھا جہاں گاؤں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اس ادارے کی بدولت گاؤں کے نوجوانوں نے دنیا بھر میں کامیابیاں حاصل کیں اور گاؤں کا نام روشن کیا۔ یہ ادارہ صرف گاؤں کے لیے نہیں بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک روشنی کا مینار بن چکا تھا۔ اس کے بعد ریگیوش نے گاؤں میں صحت کے شعبے پر بھی توجہ دینا شروع کی۔ اس نے ایک جدید ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ بنایا جہاں گاؤں کے لوگوں کو بہترین علاج کی سہولت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ریگیوش نے ایک اور اہم کام کیا، وہ یہ تھا کہ اس نے گاؤں کی خواتین کو بھی مختلف پیشوں میں تربیت دینا شروع کیا تاکہ وہ اپنے معاشی مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔ خواتین نے گھریلو صنعتوں میں کام کرنا شروع کیا اور اپنے کاروبار شروع کیے۔ اس کے نتیجے میں گاؤں کی معیشت مزید مستحکم ہو گئی اور لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ ریگیوش کا مقصد صرف گاؤں کو ترقی دینا نہیں تھا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی کمیونٹی ایک مثالی کمیونٹی بنے جو نہ صرف اپنے وسائل کی حفاظت کرے بلکہ دوسروں کی مدد بھی کرے۔ اس نے پورے علاقے میں ایک فلاحی پروگرام شروع کیا جس کے ذریعے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی تھی۔ اس پروگرام نے پورے علاقے میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ پروگرام ریگیوش کی قیادت کی ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا کہ محبت اور انسانیت سب سے اہم چیز ہے۔ ایک دن جب ریگیوش گاؤں کے ایک اجلاس میں شریک تھا، اس نے محسوس کیا کہ گاؤں کے کچھ لوگ اب بھی اس کی قیادت سے مطمئن نہیں تھے۔ ان لوگوں میں کچھ پرانے مخالفین بھی شامل تھے جو اب بھی یہ سمجھتے تھے کہ ریگیوش کی تبدیلیوں نے گاؤں کی روایات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس پر ریگیوش نے گاؤں کے لوگوں سے کھل کر بات کی اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تبدیلی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم نے یہ تبدیلیاں نہیں کی تو ہم کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے گاؤں کی روایات ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گی، مگر ہمیں جدید دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ ہم سب کا مستقبل روشن ہو سکے۔ اس بات پر گاؤں کے لوگوں نے اس کی حمایت کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ریگیوش نے گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ مل کر ایک نیا روایتی تہوار منعقد کیا جس میں قدیم رسوم اور روایات کو جدید انداز میں پیش کیا گیا۔ اس تہوار نے گاؤں کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جہاں وہ اپنی روایات کا جشن مناتے ہوئے جدیدیت کو بھی اپناتے تھے۔ یہ تہوار ایک خوبصورت امتزاج تھا جس میں دونوں چیزیں اکٹھی چلتی تھیں۔ اس تہوار نے گاؤں کی کمیونٹی کو مزید مضبوط کیا اور لوگوں کے درمیان محبت و اتحاد کا پیغام دیا۔ ایک دن جب ریگیوش گاؤں کے اپنے منصوبوں کی کامیابیوں پر خوش تھا، اس نے اپنی زندگی کے ایک اور مقصد کا تعین کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ گاؤں کی ترقی کا یہ عمل اور وسیع ہو تاکہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اسی راہ پر چل سکیں۔ اس نے گاؤں میں ایک نیا منصوبہ شروع کیا جس میں بچوں اور نوجوانوں کو کاروباری مہارتوں، جدید تکنیکوں اور عالمی سطح پر کامیاب ہونے کے لیے تربیت دی جاتی۔ اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ گاؤں کے بچے مستقبل میں عالمی سطح پر اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ ریگیوش کا خواب اب صرف اپنے گاؤں تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد پورے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا تھا۔ ریگیوش کے خواب اور محنت نے گاؤں کو ایک نئی سمت دے دی تھی۔ اب گاؤں کے لوگ نہ صرف اپنی زمینوں سے جڑے ہوئے تھے بلکہ وہ دنیا بھر میں کامیاب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک کامیاب تبدیلی لا کر یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کے ارادے پختہ ہوں اور آپ کا مقصد صاف ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ اس کی کہانی نے یہ سکھایا کہ تبدیلی کو قبول کر کے ہم اپنی روایات کے ساتھ دنیا کی ترقی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ریگیوش کے خواب کی تکمیل نے گاؤں میں ایک نئی روح پھونکی تھی۔ گاؤں کے لوگ اب نہ صرف اپنے حقوق کے لیے لڑتے تھے بلکہ وہ اپنے معاشی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کے تحت کام کر رہے تھے۔ ریگیوش نے گاؤں میں ایک کسانوں کا فورم بھی قائم کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے مسائل کو ایک جگہ جمع کر کے ان کا حل نکال سکیں۔ اس فورم میں گاؤں کے کسانوں نے جدید تکنیکوں کے بارے میں سیکھا اور اپنی فصلوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے نئی مشینری کا استعمال کیا۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا بلکہ کسانوں کی معیشت میں بھی بہتری آئی۔ اب گاؤں کا ہر کسان خوشحال تھا اور اس کی زندگی بدل چکی تھی۔
रिगेविश का एक और ख्वाब ये था कि वो गांव की तालीम के निज़ाम को इतना मजबूत बनाए कि गांव के बच्चे दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इसने गांव में एक तालीमी इदारा कायम किया जिसमें बच्चों को न सिर्फ बुनियादी तालीम दी जाती थी बल्कि उनकी शख्सियत की तामीर और जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत भी फराहम की जाती थी। इस स्कूल की बदौलत गांव के बच्चे अब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले रहे थे। ये स्कूल गांव के लिए एक निशानी बन चुका था और पूरे इलाके में इसकी मिसाल दी जाती थी। रिगेविश की मेहनत और विजन ने गांव के मुस्तकबिल को रोशन कर दिया था। रिगेविश ने हमेशा अपनी जिंदगी में उसूलों और ईमानदारी को तरजीह दी थी और उसने कभी भी किसी किस्म की बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं किया। जब गांव में एक बड़ा मंसूबा शुरू हुआ जिसमें सड़कों की तामीर और बुनियादी ढांचे की बेहतरी की बात हो रही थी तो इसने खुद इस मंसूबे की निगरानी करना शुरू की। इसकी कोशिशों की बदौलत इस मंसूबे में किसी किस्म की बदउनवानी ना हो सकी और गांव के लोग खुशहाल हो गए। इस मंसूबे के कामयाब होने के बाद रिगेविश को पूरे इलाके में एक ईमानदार रहनुमा के तौर पर जाना जाने लगा। इसकी क़ियादत का मेयार इतना बुलंद था कि गांव के लोग उसकी पैरवी करते थे और उसकी इज्जत करते थे। रिगेविश का एक और अहम कारनामा गांव में सेहत के शोबे में इस्लाहात लाना था। इसने गांव में एक जदीद हस्पताल कायम किया जहां लोगों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाती। इस हस्पताल का मकसद ये था कि गांव के लोग अपनी सेहत के मामलात में दूसरों पर इन्हिसार न करें बल्कि उनके पास तमाम जदीद इलाज की सहूलत मौजूद हो। इस हस्पताल ने गांव की आवाम की जिंदगियों को बहुत बेहतर बनाया था और अब गांव के लोग सेहत के मामलात में आज़ाद थे। रिगेविश की क़ियादत में इस हस्पताल ने गांव को एक नई जिंदगी दी थी। गांव में की जाने वाली तरक्की की बदौलत दीगर गांव के लोग भी रिगेविश के गांव में आकर उसके तजुर्बात से सीखने लगे थे। रिगेविश ने हमेशा अपने इल्म को दूसरों के साथ शेयर किया था ताकि वो भी तरक्की की राह पर चल सके। इसने मुख्तलिफ गांव के रहनुमाओं को दावत दी थी कि वो गांव आकर उसके काम को देखें और उसकी कामयाब हिकमत अमलियों को अपनाएं। इसकी रहनुमाई में कई गांवों ने अपने माशी हालात में बेहतरी लाई और उनके लोग भी खुशहाल हो गए। रिगेविश का ये अक़दाम पूरे इलाके के लिए एक नई रोशनी की मानिंद था। एक दिन जब रिगेविश गांव में अपने मंसूबों का जायजा ले रहा था, इसने गांव के एक बूढ़े किसान को देखा जिसकी आंखों में अफसोस और गम था। वो किसान रिगेविश के पास आया और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत ने गांव को बहुत तरक्की दी है, लेकिन मुझे ये फिक्र है कि क्या हमारा बच्चा वही मेहनत और ईमानदारी इख्तियार कर पाएगा जिसका तुमने आगाज किया था। रिगेविश ने इस किसान को समझाया कि तब्दीली का अमल हमेशा जारी रहता है और ये जरूरी नहीं कि हर नस्ल वही राह इख्तियार करे जो पिछली नस्ल ने इख्तियार की थी। इसने कहा, हमने जो रास्ता दिखाया है वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होगा और हमारे बच्चे इसे मजीद आगे बढ़ाएंगे। इस किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो जान गया कि रिगेविश ने एक ऐसी बुनियाद रखी है जिस पर पूरा गांव फख्र कर सकता है। रिगेविश के दिल में हमेशा ये ख्वाहिश थी कि वो अपने गांव की तरक्की को मजीद वसी करे और इसी मकसद के तहत इसने एक नया मंसूबा शुरू किया जिसका मकसद पूरे इलाके में माहिर किसानों की टीम तैयार करना था। इस मंसूबे का मकसद ये था कि किसानों को जदीद तकनीकों के बारे में तरबियत दी जाए ताकि वो अपनी फसलों को बेहतर बना सकें और अपने पैदावार को आलमी मार्केट तक पहुंचा सकें। इस तरबियती प्रोग्राम ने पूरे इलाके के किसानों को एक नई जिंदगी दी और उन्हें आलमी सतह पर कामयाब होने के लिए तैयार किया। रिगेविश का यह मंसूबा पूरे इलाके के लिए एक संग मील साबित हुआ। रिगेविश की मेहनत ने गांव में न सिर्फ माशी तरक्की की बल्कि समाजी तब्दीली भी लाई। इसने गांव में ख्वातीन के लिए एक खुसूसी तरबियती मरकज कायम किया था जहां वो मुख्तलिफ हुनर सीख सकती थीं। इस मरकज में ख्वातीन को घरेलू सनतों, सिलाई कढ़ाई और कारोबारी महारतों की तरबियत दी जाती थी। इस तरबियती प्रोग्राम के जरिए गांव की ख्वातीन ने खुद मुख्तारी हासिल की और अपने खानदानों की मईशत में बेहतरी लाई। ये प्रोग्राम गांव के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि इसने ख्वातीन को माशी तौर पर ताकतवर बना दिया था। रिगेविश की क़ियादत में गांव ने जो तरक्की हासिल की थी वो अब पूरे इलाके में एक मिसाल बन चुकी थी। लोग आकर देखते थे कि किस तरह एक छोटे से गांव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के जरिए तरक्की की राह इख्तियार की। रिगेविश हमेशा इस बात पर जोर देता था कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से आती है और उसकी मेहनत ने गांव की तकदीर बदल दी थी। इसकी कहानी अब पूरे इलाके में सुनाई जाती थी और लोगों ने इससे सीखा कि अगर दिल में सच्चाई और अज़्म हो तो कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है।
रिगेविश की जिंदगी में एक और अहम मोड़ आया जब गांव के एक नौजवान रहनुमा ने इसकी क़ियादत को चैलेंज किया। इस नौजवान रहनुमा का ख्याल था कि गांव में जो तब्दीलियां हो रही हैं वो रवायत के खिलाफ हैं और उसके नतीजे में गांव की असल शनाख्त खत्म हो जाएगी। रिगेविश ने इस नौजवान रहनुमा को तहम्मुल से सुना और कहा, हम सब का मकसद एक ही होना चाहिए, वो है गांव की फलाह। तब्दीली के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं और हमें अपनी रवायत को बचाते हुए जदीदियत को अपनाना होगा। इस नौजवान रहनुमा ने रिगेविश की बात को समझा और उसके साथ मिलकर गांव की मजीद तरक्की के लिए काम करने का फैसला किया। इसके बाद रिगेविश ने गांव में एक मजीद तरक्याती मंसूबा शुरू किया जिसमें जदीद ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में इस्लाहात की गई। इस मंसूबे का मकसद गांव को मजीद मुस्तहकम और खुद कफील बनाना था ताकि गांव वाले अपने वसाइल पर इन्हिसार करें और अपनी तकदीर खुद लिखें। इस मंसूबे की कामयाबी ने पूरे इलाके में एक नई लहर पैदा की और लोगों ने रिगेविश को एक हकीकी रहनुमा के तौर पर कबूल किया। इसकी क़ियादत में गांव ने न सिर्फ माशी बल्कि समाजी तरक्की भी हासिल की थी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।